Good morning, students of class 4th. So today we are going to start the 22 chapter of EVS, that is the world in my home. So let's start. Children, in this chapter we are going to talk about some situations that we face in our daily lives. So let's start the chapter. Now, tug of war. See, this is our first situation. So it is about whose preference. किसकी बात मानी जाएगी? Once again, everybody in Merita's family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. Marita's brother wants to watch a cricket match while little Suzanne is eager to watch her favorite program of songs. Mummy and Auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mummy likes to watch the news while Auntie Go enjoys a TV serial. Marita wants to watch cartoons and Daddy enjoys the football match. He says that he can watch TV only in the evening. Finally, everyone had to watch the football match. हर बार की तरह आज भी मेरिटा की फैमिली में टीवी देखने के लिए सभी झगड़ा कर रहे हैं। उसके ब्रदर को क्रिकेट मैच देखना है, जबकि छोटी बहन सुसैन को गाने के प्रोग्राम को देखना है। मम्मी मम्मी और आंटी जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स है वो अलग हैं। मम्मी को न्यूज़ चैनल देखना है और आंटी को टीवी सीरियल देखना है। मरीटा को कार्टून देखना है और उसके पापा को फुटबॉल का मैच देखना है। उसके पापा यह भी बोलते हैं कि सब सुबह तो उन्हें ऑफिस जाना होता है, इसलिए शाम को ही उन्हें टीवी देखने का मौका मिलेगा। फाइनली सबको क्या देखना पड़ा? फुटबॉल मैच. Next is why the difference. So our next situation is about inequality. It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home from her friend's house. Her brothers Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends. They are in no hurry to go home. Even if they are late, nobody will scold them. ओके, शाम के 7 बज चुके हैं। प्रतिभा अपने फ्रेंड के घर गई थी और वहां से जल्दी जल्दी अपने घर वापस आ रही है, लेकिन उसके भाई संदीप और संजय अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी हैं। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर वो थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी उन्हें कोई नहीं डांटेगा। ओके, प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर. Why should there be one rule for her and another for her brothers? But what can she do? ओके, प्रतिभा सोचती है कि ये तो सही नहीं है। मैं घर में लेट आऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरे भाइयों को घर पर लेट आने पर कोई भी नहीं डांटेगा। कि ऐसा एक ही रूल क्यों नहीं है उसके लिए और उसके भाइयों के लिए, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। नेक्स्ट इज पिल्लू आंटी. नाउ आवर नेक्स्ट सिचुएशन इज अबाउट ऑनेस्टी. वन डे पिल्लू आंटी टुक फेली and Nazud and their friends to the beach. What a good time they had. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. After that, they ate bhelpuri and bought balloons. Then everybody enjoyed some icy cold kulfi. When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 kulfis instead of 7. The children thought, hurrah, we have saved money. But Pillu auntie paid the money for 7 kulfis to the kulfi सेलर. एक दिन पिल्लू आंटी फेली, नाजू और उनके फ्रेंड्स को लेकर बीच में घूमने के लिए गई. उन सब ने बहुत मजे किए. सबने रेत और पानी में खेला. उसके बाद बड़े से जाइंट व्हील में राइड किया. उन्होंने भेलपूरी खाई और अपने लिए बलून्स भी खरीदे. उसके बाद सबने मिलकर कुल्फी भी खाई. लेकिन जब कुल्फी वाले को पैसे देने की बात आई तो कुल्फी वाले ने एक गलती कर दी. पिल्लू आंटी के साथ 7 जने थे, जबकि कुल्फी वाले ने पैसे लेते वक्त 5 लोगों के कुल्फी के पैसे ही मांगे. सब बच्चों को लगा, अरे वाह, मजा आ गया, हमने थोड़े से पैसे बचा लिए. लेकिन ईमानदार पिल्लू आंटी ने 7 लोगों के कुल्फी के पैसे ही कुल्फी वाले को दिए. पिल्लू ओके, द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पिल्लू आंटी डिड दैट डे. ओके, पिल्लू आंटी की इस ऑनेस्टी ने एक बहुत बड़ी सीख दी जिसे बच्चे हमेशा याद रखेंगे. What should I do? So our next situation is about untouchability. Akshay loves his grandmother very much. She loves him dearly too. She talks to him about many interesting things. Anil is Akshay's friend. His grandmother likes Anil too.
But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. They are very different from our family, she says. अक्षय अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता है, दादी माँ भी अक्षय से बहुत प्यार करती हैं। वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताती हैं। अक्षय का एक दोस्त भी है अनिल, दादी माँ उसको भी बहुत पसंद करती हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ जो वो अक्षय को बार बार बताती हैं वो ये है कि उसे अनिल के घर जाके कुछ भी खाना नहीं है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि अनिल का परिवार हमारे परिवार से बहुत अलग है। One day there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. Anil invited everybody home. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay stared at Anil, not knowing what to do. एक बार क्या हुआ, वो सभी बच्चे वॉलीबॉल मैच खेलने गए एक बहुत बड़े से ग्राउंड में जो कि अनिल के घर के पास था। बहुत ही गर्म दिन था, सब लोग बहुत ही टायर्ड हो गए और उन्हें प्यास लगने लगी। अनिल ने सबको अपने घर में इनवाइट किया। अनिल की जो मदर है उन्होंने सबको पानी दिया पीने के लिए और सबने वो पानी पी लिया। When अनिल हैंडेड अक्षय ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने अक्षय को क्या दिया, ग्लास ऑफ वाटर पीने के लिए पानी दिया, तो अक्षय को अचानक ही याद आया कि उसकी दादी माँ ने क्या बोला करती थी। तो अक्षय जो है स्टेयर्ड एट अनिल, वो अनिल को देखने लगा और उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। Who will decide? Now our next situation is about who will take decision. Dhondu comes from a very large family. His elder uncle looks after the family, their fields, money matters, etc. He decides about all the small and big things for the family. धोंदू एक बहुत ही लार्ज फैमिली को बिलोंग करता है। धोंदू के पापा के जो बड़े भैया हैं वो ही उसके परिवार की हर चीज़ की देखभाल करते हैं, उनके खेत, उनके पैसे और घर की बाकी सारी चीज़ें, छोटी से छोटी डिसीजन और बड़े से बड़ा फैसला भी वही लेते हैं। Dhondu has always worked in the fields, but now he wants to do something different. He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki machine to grind grain. धोंदू ने हमेशा खेतों में ही काम किया है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता है। वो बैंक से पैसा उधार लेके चक्की मशीन खरीदना चाहता है अनाज को पीसने के लिए। There is no such machine in their village. Dhondu is confident that this new work will help him earn more money for his family. Father has agreed to let him try the new work, but his elder uncle is not agreeing to this. उसके पूरे गांव में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, इसलिए धोंदू को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर वो ये नया काम शुरू करेगा तो उसे बहुत सारे पैसे कमा सकेगा और अपनी फैमिली के लिए। धोंदू के पापा इस बात को मान गए, लेकिन उसके एल्डर चाचा इस बात को नहीं माने। I don't like it. Now our last situation is about feeling bad. Meena and Ritu were going home after playing hopscotch. Come on, come to my house, pleaded Meena, pulling Ritu by the hand. Okay, मीना और रितु बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हॉपस्कॉच खेलने के बाद मीना और ने रितु को बोला कि चलो रितु मेरे घर चलो, उसका हाथ पुल करते हुए। Is your uncle at home? If he is, I will not come. Ritu answered. रितु ने कहा क्या तुम्हारे चाचा जी घर पर हैं? अगर वो है तो मैं नहीं आऊंगी। But why do you say that? Uncle likes you. He was saying, bring your friend Ritu home and I will give both of you lots of chocolate. लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। और वो बोल रहे थे कि अपने फ्रेंड रितु को घर लेके आना और मैं उसे बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा तुम दोनों को। Ritu pulled her hand away from Meena, saying, I am scared of your uncle. I do not like it when he even touches my hand. रितु ने हाथ छोड़ा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे। मीना ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने अपना हाथ छुड़ाया उससे, ये बोलते हुए कि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मेरा हाथ छूते हैं या हाथ पकड़ते हैं। Saying this, Ritu went home. ये कह के रितु अपने घर चली गई। So children, go through this chapter once and thank you children.